Hi everyone. Hi, how are you all? I hope that you all are doing great. Today is a one-shot video in which I'll be covering class 9th economics chapter number 1, that is story of the village Palampur. And it's a very easy chapter. So no need to worry. It's a very easy chapter and we're going to be covering it in one shot. So let's begin. So basically, देखो, we're going to be telling you about a village, Palampur, in this chapter. And now this village, Palampur, it's not a real village. It's a hypothetical village. Matlab, it's an imaginary village. We have just introduced this new village for the purpose of understanding economics. Okay, so it's not a real village. We have just introduced this village so that you can start learning economics for the purpose of understanding basic concepts of economics. Okay, through the example of this Palampur, I'm going to be explaining you the basic, concepts that are related to economics. Okay, so let's start with the introduction first. Yeah, so Palampur, it is a hypothetical village, as I earlier said. Okay, so now what do I mean by a hypothetical village? It means that it's an imaginary village, non-exists in reality. Just for the purpose of understanding, we have introduced this. Here, farming is the main activity. ठीक है, तो देखो such kinds of pointers, objective, because now you're going to be asked more and more of objective questions, so you must know these small pointers. So these kind of things can come in the objective, your exam, that what is the main activity of Palampur. So you have to write that farming, because it's mentioned that the farming is the main activity of Palampur. Number 2, it is well connected with the neighboring villages and towns. It is 3 kilometers away from Raiganj, which is a big village. So it's again a one marker question that can be asked. Your Palampur, it is 3 kilometers away from which village? You have to tell Raiganj, or they can ask that Raiganj is how many kilometers away from Palampur. So you have to write 3 kilometers. Okay. Coming on to the next thing, connectivity in Palampur. So talking about connectivity, now this village, it has an all-weather road. Now, what do I mean by all-weather road? All-weather road means it is an operational road. Okay, it's an operational road. It works 24/7. Okay, it's an operational road. Now, तो जो भी this पालमपुर के आसपास के villages and towns हैं, तो ये पालमपुर से connected हैं through an all-weather road. And अब जो ये connection होता है, तो इसमें हम कौन-कौन से transports देखते हैं? This point, bullock carts, tongas, jeeps, motorcycles, tractors, trucks. Okay, तो ये सारे kind of transports हमें दिखते हैं कहाँ? पालमपुर में. ठीक है, कहाँ दिखते हैं? जो वहां की आपकी ऑल वेदर रोड है, जो कि एक ऑपरेशनल रोड है, वहां पे हमें ये सारे ट्रांसपोर्ट दिखते हैं. एंड क्यों है ये ट्रांसपोर्ट, इफ यू आस्क? अब देखो, अब चीजों का ट्रांसपोर्ट तो होना है ना. ये आपके पालमपुर से दूसरे विलेजेस में things will go, then things will have to transport, right? So for this purposes we have these all things. Okay, again a 1 mark question can come. Now, this is very important, and 110% of question would be asked from this topic. Now, listen. जो पालमपुर है, उसमें basically 450 families हैं. How many? 450 families हैं पालमपुर में. ठीक है? And now, अब जो families है ना, देखो, इन सबके castes different है. मतलब कोई scheduled caste है, कुछ upper castes है. ठीक है? तो कितनी है टोटल? 450 फैमिलीज. उसमें से जो शेड्यूल्ड कास्ट है, यानी कि जो आपके दलित्स हैं, ये कितना कंप्राइज करते हैं? ये कंप्राइज करते हैं 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन. 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन. अब 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन कितना हुआ? 150. ठीक है, 150 फैमिलीज हैं किसकी? दलित्स की.
या शेड्यूल कास्ट की। अब देखो, अब इनके साथ क्या है, where do they live? They live in the corner of the village. Village के corner में रहते हैं, and they have the houses that are made up of mud and straw. Straw क्या होती है? वो जो सूखी हुई घास type होती है ना, which we feed to the horses and donkeys and all fodder. ठीक है, that is your straw. तो तो जो भी आपका ये शेड्यूल कास्ट है, जो ये 150 फैमिलीज है, कहाँ रहती हैं ये? दे लिव इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड दे हैव वेरी स्मॉलर हाउसेस दैट आर मेड ऑफ मड, मिट्टी के बने होते हैं, एंड स्ट्रॉ के बने होते हैं। यू ऑल नो ऐसे छोटे छोटे हाउसेस ऐसे बने होते हैं। Then they are usually landless. इनके पास कोई लैंड नहीं होता. They usually work in the fields of big land. जिनके पास बड़े बड़े lands होते हैं, they work in the fields of them because they usually do not have land. Okay, coming on to the 80 upper caste families, they own a majority of land and they live in big houses. अब किसके पास मेजॉरिटी ऑफ द लैंड है? अपर कास्ट के पास। इनके पास मेजॉरिटी ऑफ द लैंड है एंड इनके पास बड़े बड़े हाउसेस हैं जो कि बने होते हैं किससे? ब्रिक से, सीमेंट से, प्लास्टरिंग, जैसे हमारे हाउसेस होते हैं, राइट? सो दीज गाइज 80 upper class, they live in the big houses and they own the majority. And how are the houses? The houses are made up of bricks and cements. Okay, coming on to this topic, public facilities in Palampur. So देखो, most of the houses have electric connections. आपने कभी सुना है किसी भी village में electric connections? Obviously नहीं ना, तभी तो hypothetical village है ये. Now this village has electric connections. Electric connections as this village. Okay. Electric connections are, what does it mean? You have a TV, you have radios and all this, right? Modern, advanced village we're talking about. Okay, coming on to the village. This village has 2 primary schools and 1 high school. Okay, these questions, they can come. It has 2 primary schools and 1 high school. Okay. There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary. एक public hospital है, public health care center है, और एक private dispensary है. ठीक है, एक health center है, public health center है जो government ने करा हुआ है, और second एक private dispensary है. ठीक है. Coming here, thus we can say that the Palampur has fairly well-developed system of roads, transport, electricity and irrigation, schools and health center. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये पालमपुर है, इसके पास well-developed अच्छा system of roads है, अभी हमने पढ़ा all-weather road है, transport system इसका अच्छा है, electricity है, irrigation की facilities हैं, schools अच्छे हैं और health भी अच्छी है. So we can say that overall this is a very nice and very advanced village. Can we? Right. Okay. Coming on to the non-farming activities in Palampur. Okay. So non-farming activities की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका small scale manufacturing आता है. ठीक है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो आप इफ यू लिव you're poor, if you are poor, okay, अब आप क्या करते हो, आपके पास थोड़ा सा पीस ऑफ लैंड है, you have थोड़ा सा पीस ऑफ लैंड, अब इस पे क्या करते हो, all your family members, ठीक है, जितने भी हैं घर में, you all cultivate on this. इसी छोटे से लैंड में खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो. ठीक है, यू आर वर्किंग इन योर ओन फील्ड्स एंड यू आर अर्निंग फॉर योरसेल्फ. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. कमिंग ऑन टू ट्रांसपोर्ट,
अब देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, जिसमें कहीं भी फार्मिंग नहीं आएगी। अभी हमने पहले बात करा था कि फार्मिंग इज मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर, राइट? बट नाउ वी आर टॉकिंग कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में हमारा ट्रांसपोर्ट भी आता है, ठीक है? पहले हमने पढ़ा ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होती है। सेकंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट अभी हमने देखा था ना, दे हैड जीप्स, दे हैड ट्रैक्टर्स, तो जो भी ये ट्रांसपोर्टिंग वाला काम करता है ना, ड्राइवर्स वगैरह, तो इन सबको हम बना देते ट्रांसपोर्टिंग के लिए। ओके, कमिंग टू शॉपकीपिंग, छोटी छोटी लोगों ने अपनी शॉप्स खोल के रखी हैं फॉर द डेली नीड्स, जो भी इनको डेली नीड्स के लिए चाहिए होता है, जैसे मिल्क, बटर एंड एवरीथिंग वी नीड इन अ डेली हाउस होल्ड, उसके लिए शॉपकीपिंग्स हो गई, ठीक है? फिर डेयरी प्रोडक्शंस हो गया, ठीक है? सो दीज आर योर ऑल द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन Palampur. These production activities are carried out on a limited scale because they require money, natural resources and human efforts. इनको हमने थोड़े से concentration में रखा है, ये थोड़ी सी ही होती हैं. Why? Because इनमें हमें मनी ज्यादा चाहिए. अब गांव वालों के पास इतनी मनी तो है नहीं. We require more resources, right? We require more natural resources. We require more human efforts. राइट, इसलिए ये थोड़ी सी एक्टिविटीज होती हैं, राइट? एंड यूजुअली जो मेन है वो फार्मिंग एक्टिविटी है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जब प्रोडक्शन करते हो आप उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हो, राइट? प्रोडक्शन, व्हाट डू आई मीन बाय प्रोडक्शन? It is the organized activity of transforming resources into finished product. मतलब I have any raw material, for example, I have wheat. Now, इस wheat ये है मेरा कैसा, ये मेरा एक resource है, ठीक है? It's my raw resource. It's my raw resource. अब इसको मेरे को transform करके जब if I make chapati out of it, can I say that it's a finished product? Right. Say for example, if I have tea leaves, I have milk, I have water, I have sugar, I can add all of this. अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ इन सारे इंग्रेडिएंट्स को, तो ये वैसे यूज में नहीं आएंगे, ठीक है? ये वैसे यूज में नहीं आएंगे. बट जैसे ही मैं इन सबको ऐड करके टी बनाती हूँ, ये यूज में आ गए, राइट? फिनिश्ड एक प्रोडक्ट आ गया मेरे पास. सेम वे जितने भी रिसोर्सेज है, यहाँ पे आपको रॉ रिसोर्सेज मिलते हैं, इनको हम यूज करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं. ओके, Now, what is the aim of the production? जो हम इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका एम क्या है? Producing goods, services that we want. अब देखो हम प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें जो भी गुड्स चाहिए, जो भी हमें सर्विसेज चाहिए, हमको मिल जाए. Okay. What are the factors that are responsible for production? This is a super important question. Super important question, and that will come within 10%. We're asking कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. लैंड चाहिए, लैंड पे ही तो करोगे ना जो भी फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो या एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो आपको लैंड तो चाहिए ना. लैंड. दूसरा लेबर, खुद तो काम नहीं करोगे, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतने बड़े लैंड पर खुद तो हम काम नहीं करेंगे ना. वी नीड लेबर. फिजिकल कैपिटल चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कैपिटल? मनी तो चाहिए ना. वी नीड मनी. हमें टूल्स चाहिए, मनी चाहिए काम करने के लिए. विदाउट मनी वी कैन नॉट. लेबर को पैसे चाहिए. वी नीड मनी टू बाय थिंग्स. हमें चीजें चाहिए, हमें मशीन्स चाहिए. वी नीड द फिजिकल कैपिटल, राइट? देन वी नीड द ह्यूमन कैपिटल. कोई बुद्धू से इंसान को आप इस सारा काम करने के लिए लगा दो, इट विल नॉट बी पॉसिबल, राइट? वी नीड अ स्मार्ट पर्सन. वी नीड अ स्मार्ट पर्सन. A labor cannot handle all of this. Why? Because he is not skilled.
वो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए स्किल्ड है. अगर एक लेबर एक बिल्डिंग बनाने के लिए स्किल्ड है, यू कैन नॉट मेक दैट पर्सन दैट लेबर स्किल्ड इन थिंकिंग कि कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, यहाँ कितना प्रॉफिट होना चाहिए. फॉर दैट वी नीड अ ह्यूमन कैपिटल. Okay, we need a smart person, we need a smart thing who can put all of this into action. All of these things cannot come to use on their own. We need a smart person to do it. Next, production is organized by combining all of these factors. अगर ये सारे factors नहीं होंगे तो production नहीं होगा. ठीक है, तो देखो, all explained here, I explained also. See, land, other natural resources such as water, forest, minerals. ठीक है, water हो गया, forest हो गया, minerals हो गया. हमें सब चाहिए. किसकी कैटेगरी में आता है ये सब? लैंड की कैटेगरी में. Then we need labor, people who will do the work. Production activities require both. Skilled भी चाहिए होते हैं, unskilled भी चाहिए होते हैं हमें, right? Coming on to physical capital. देखो, physical capital ना दो आगे इसके सब डिविजन्स है. एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल, जो भैया आपने एक बार ही ले लिया ना 100 साल तक टिका रहेगा. दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल, जो यू नीड टाइम टू टाइम. फिक्स में क्या आ गया? आपके मशीन्स आ गए, टूल्स आ गए. ठीक है, तो ये है कि आप भाई एक बार ही लेते हो, बार बार नहीं लेते हो. मैंने अगर एक बुक प्रिंटिंग की एक मशीन ली है, मैंने एक ही बार ली है, मैं बार बार नहीं लूंगी उसको, है ना. एंड सेकेंड, वर्किंग कैपिटल है, ये मेरे को चाहिए भाई. I needed, time to time. For example, I got money 1 week ago. Okay, or let's take it 1 month ago. I got money 1 month ago. I spent it on all the factories and all this stuff. Now I need money again. लेबर को फिर से काम करना है, मेरे को चीजें फिर से प्रोड्यूस करके सेल करनी है. सो आई नीड मनी. मनी इन हैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वर्किंग कैपिटल. सेम वे रॉ मटेरियल, मैंने एक बार ही कुछ प्रोड्यूस करा, आई नीड द रॉ मटेरियल अगेन, राइट? सो सी, it means the same. Physical capital, it means variety of inputs required that we need at stage, every stage of production, though they fixed and working. Fixed includes tools, machines, buildings that can be used in production over many years. There's a plow, generator, computers, etc. You take them one time and you use them for many years. Coming on to the working capital, it includes the raw material, money, and etc. ठीक है? Now, difference भी आ सकता है कि differentiate between the fixed capital and working capital. So see, जो fixed capital है, ये long term के लिए चलता है. मैंने एक machine ली, मैंने if I took a machine, so it will go for many years, 7 years, 8 years, and so on. But if I take anything, like money, it just goes for a month. So it serves for a short term. Fixed capital remains in the business almost permanently. Fixed capital usually permanently रहता है in the business. Then working capital, you need it at every batch of production. Every time you produce any thing, like anything you produce in your factories, you need this again and again. Example, see, land, machines. If I took a land, वो land में बहुत, for years I will use it. Same as with machines. But if I have money, if I have raw materials, I need them again and again. Okay, very important, knowledge and human capital. Knowledge is required to be able to put together land, labor, physical capital, and produce the output, either to use yourself or to sell in the market. ठीक है, हमें human capital या knowledge हमें इसलिए चाहिए ताकि हम इन सारे factors को, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, हम इनको कंबाइन करके कुछ यूजफुल थिंग बना ले, जो हमारे लिए भी यूजफुल हो, सोसाइटी के लिए भी यूजफुल हो. ह्यूमन कैपिटल में देखो क्या क्या है? क्रिएटिविटी, वाइजडम, जजमेंट, नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस. ये सब लेबर में थोड़ी ना होता है, राइट? दैट्स द पॉइंट.
Coming on to the farming in Palampur. तो अब लोग farming कैसे करते हैं पालमपुर में? Let's get to know about it. देखो भाई, सबसे पहले the land is fixed in Palampur. Land is fixed. कुछ भी हो भाई, land fixed है. अब अगर मेरा land fixed है, I cannot increase the land. Land is in a finite magnitude. I cannot increase the land on this earth. It is limited, right? So देखो, farming is the main production activity in Palampur. Farming हम सबको पता है. 75% of the population practices agriculture. देख रहे हो आप, 75% जो है population वो पूरी की पूरी agriculture पे dependent है. Isn't it amazing? Now, the well-being of these people is closely related to production of farms. They could be farmers or farm laborers. अब देखो दो तरह के, या तो वो farm laborers हैं या तो वो farmers हैं. ठीक है, या तो farmers या तो farm के laborer है. अब देखो डिफरेंस क्या है. farmers वो हैं जिनके पास खुद का लैंड है, जिनके पास खुद का लैंड है, they have their own land. बट अगर मैं बात करूं लेबर की, इन बेचारों के पास लैंड नहीं है, ये इनके लैंड पर काम करते हैं टू अर्न मनी. Constraint. Since 1960, Palampur, there has been expansion. There has been no expansion in the land under the cultivation. जैसे मैंने आपको बताया कि भाई लैंड ना फाइनाइट मैग्नीट्यूड में इंक्रीज नहीं कर सकते, तो जितना लैंड है उतना ही रहेगा. यू हैव टू वर्क स्मार्टली. अब विलेजर्स ने क्या स्टेप करा, जो वेस्टलैंड्स थे उसको उन्होंने कल्टिवेबल लैंड में वो कन्वर्ट कर दिया. सच अ नाइस स्टेप. सेकंड क्वेश्चन है, क्या इज देयर अ वे हम एक ही लैंड से ज्यादा ग्रो कर सके? जहां मैं एक ही लैंड से सम फिक्स क्वांटिटी ऑफ पोटैटो ग्रो करती थी, क्या मैं उसका डबल ग्रो कर सकती हूँ? कैन आई? यस आई कैन. देखो, the kind of crops grown in the facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the Uttar Pradesh. ठीक है, जैसे उसके climatic conditions हैं, हम उसको think कर सकते हैं. We can just imagine कि it resembles a village from the state of Uttar Pradesh. ठीक है, उत्तर प्रदेश में farming भी अच्छी होती है, तो हमने assume कर लिया कि चलो भाई village आपका ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है. Kharif season. During rainy season, farmers they grow jowar and bajra. ठीक है, तो बेसिकली थिंग क्या है कि आप एक लैंड से दो क्रॉप्स ही प्रोड्यूस कर सकते हो. आई मीन डबल, you can produce a double quantity of the crops. We're going to learn it in the next slide. Okay, so see, first of all तो देखो सीजन देख लो. खारिफ सीजन में जब बहुत बारिश होती है, जब बहुत गर्मी होती है, at that time they grow the jowar and bajra. Then these plants are used as fodder for the cattle. Number 2, it is followed by the cultivation of potato between October and December. Rabi season. तो rabi season में देखो winters, basically rabi crops जो होती है, they are the winter crops. In this thing, fields are sown with wheat. Wheat हम सबको पता है, it's a rabi crop. It grows in the winters. Out of which farmers keep enough wheat for the family consumption and sell the surplus in market. What do I mean by surplus? Surplus means extra. बहुत सारा wheat grow करते हैं, आधा अपनी फैमिली के लिए रखते हैं, जो सरप्लस है, जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो उसको सेल कर देते हैं मार्केट में. कहाँ? रायगंज. अभी हमने पढ़ा था ना रायगंज. It is a big village that is 3 kilometers away from Palampur. Coming on to the next thing, sugarcane is also harvested once a year. एक बार इस साल में आप sugarcane को भी harvest करते हो. To the traders nearby towns in the Shahpur. भाई शाहपुर क्या? जैसा भी हमने एक रायगंज पढ़ा था ना, वैसे ही एक शाहपुर है, एक small town है. I guess 5 kilometers away from Palampur. You can check in your books. First page पे given है.
Shahpur, it is 5 kilometers away from Palampur, and it's a small town kind of. And अभी क्या करते हैं? Jaggery. What do you mean by jaggery? It is good. ठीक है, the powder form of good. It is sold in the traders of Shahpur town. Coming on to the do you know fact, the standard unit of measuring land is hectare. अब देखो हेक्टेयर, हेक्टेयर आपका एक स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरिंग ऑफ लैंड, बट डिफरेंट विलेजेस में, दूसरी कंट्रीज में चल जाओगे वो दूसरा यूज करते हैं मेथड। जैसे हम इंडिया में यूज करते हैं बीघा, ठीक है, वैसे ही ये जो हम यूज करते हैं ना बीघा, गुइंठा, तो ये सब क्या होता है? ये होता है आपका लोकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लैंड, ठीक है। जैसे हम इंडिया में कहते हैं आपके पास कितना बीघा लैंड है, सो बेसिकली वी मीन कि आपके पास कितना हेक्टेयर लैंड है। स्टैंडर्ड यूनिट में बात करो तो हेक्टेयर का होगे, अगर लोकल यूनिट्स में कहो तो सबका अपना अपना होता है। इंडिया का बीघा है, दूसरी कंट्रियों का दूसरा होता है, राइट। Coming on to the reasons that enabled the growth of 3 different crops a year. अब एक फार्मर है, उसने 3 डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर दी हैं, एक ही ईयर में उसने 3 डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर दी हैं। हाउ? व्हाट्स द रीजन? देखो, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, अच्छा इरिगेशन सिस्टम है, अच्छा पानी दोगे क्रॉप्स को, अच्छी जल्दी ग्रो होंगी। नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। Evolution of the irrigation system in Palampur. देखो, irrigation system, irrigation means water. अब देखो, आपने हिस्ट्री में 7th क्लास में एक व्हील के बारे में पढ़ा था, that is your Persian wheel. Persian wheel. अब जो Persian wheel है, it is such kind of wheel जो कि हेल्प करती थी वाटर को ड्रॉ करने के लिए, इरिगेशन के लिए, ठीक है। देखो, ये देख रहे हो, दिस इज अ पर्शियन व्हील, ठीक है, इट्स अ पर्शियन व्हील। अब इनका क्या यूज था? देखो, ये ऐसी व्हील होती है आपकी, उस पे आपने बकेट्स करी होती हैं, एंड जैसे ही आप उसको रोटेट करते हो, तो वैसे ही वो वाटर ऐसे बकेट्स में से कर लेती थी। सी, यू कैन सी, ये व्हील है आपका, उस पे ये आपकी बकेट्स अटैच्ड है। अब ये क्या है? जैसे ही वाटर अंदर जाएगा इस बड़े से ट्यूबवेल काइंड ऑफ सॉरी व्हाटएवर द कंटेनर काइंड ऑफ थिंग में, इट विल फिल अप वाटर, पानी भरेगा, then it will deposit the water in the side वाला कंटेनर, ओके। सो ऐसे होगा, तो इट इज वेरी हेल्पफुल, was very helpful, but अब लोगों ने क्या करा है, इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल से, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल से। अभी हमने बात करी ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, इसकी वजह से क्या अच्छा हो रहा है? प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है क्रॉप्स का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स होते हैं क्योंकि ये इरिगेट जो है लैंड को ज्यादा अच्छे से करते हैं, ठीक है। Coming on to the development of ट्यूबवेल्स। अभी ट्यूबवेल्स कैसे डेवलप हुए? तो जो पहला जो ट्यूबवेल इंस्टॉल करा था वो गवर्नमेंट ने करा था इंस्टॉल, ठीक है। थोड़े बहुत उन्होंने ट्यूबवेल्स गवर्नमेंट ने करे थे इंस्टॉल इस विलेज में। उसके बाद फार्मर्स ने प्राइवेट ट्यूबवेल्स एस्टैब्लिश, सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मिड 1970 तक जो इंटायर कल्टीवेटेड एरिया है ऑफ 200 हेक्टेयर्स, देखो पालमपुर का टोटल कितना एरिया है? 200 हेक्टेयर्स, ठीक है। ये बात ये नोट कर लो, आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। 200 हेक्टेयर्स इरिगेट हो गया था, कैन यू इमेजिन? ठीक है, कैसे हुआ? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स है। देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। कमिंग ऑन टू दिस थिंग, do you know facts are very important. Of the total cultivable area, a country has little less than 40% irrigated area even today, and the remaining areas of farming are largely dependent on
रेनफॉल। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीपल क्रॉपिंग। अभी हमने डिस्कस करा था ना कि आप मोर क्रॉप्स कैसे ग्रो कर सकते हो एक ही पीस ऑफ लैंड से। पहला है इसका पॉइंट मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग करो, जितनी क्रॉपिंग कर सकते हो करो। एक ही लैंड पे दो दो क्रॉप्स ग्रो करो ऑल्टरनेटिव वे से। ठीक है, मतलब एक क्रॉप ग्रो करी, दूसरी को हटाओ, दूसरी करी, ऐसे ऐसे करके। तो सी फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। आपको गिवन पीस ऑफ लैंड है उसमें मोस्ट इफेक्टिव वे है। नंबर 2, growing more than one crop on a piece of land during the year. Number 3, all farmers in the Palampur, they grow at least two main crops that are potato as the third crop. देखो farmers जो है usually एक साल में दो crop तो grow करते हैं, प्लस वन एडिशनल में पोटेटो वो ग्रो करते हैं एज अ थर्ड क्रॉप। मल्टीपल क्रॉपिंग डिस्कस करते हैं। One way of increasing production is from the same land by multiple cropping. Same land से ज्यादा किसी क्रॉप करोगे multiple cropping से, ये एक natural way है। The other way to use modern farming method. Modern farming method use करोगे, पहला तो भी हमने पढ़ लिया ना, मल्टीपल क्रॉपिंग, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग, मल्टीपल क्रॉपिंग। देखो फर्स्ट क्या है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग एंड सेकंड क्या है यूजिंग ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब देखो पहला तो हमने सीख लिया कि भाई आप एक ही लैंड पे ऑल्टरनेटिव वे में क्रॉप्स ग्रो करो। कभी आप ये कभी आप पोटैटो ग्रो करो, कभी आप ये ग्रो करो एंड सो ऑन, दैट्स अ मल्टीपल क्रॉपिंग। सेकंड है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अपनाओ, जैसे HYV सीड्स यूज करो। HYV सीड्स कौन सी होती है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, भी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर यूज करो, थोड़ा भी मॉडर्न हो जाओ, दैट्स व्हाट द पॉइंट। प्रॉपर इरिगेशन यूज करो, उससे भी आपकी बढ़ती है। अब देखो पहले क्या था कि जो फार्मर्स थे पहले वो ट्रेडिशनल यूज करते थे, बट उनकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं हुई। बट देन ग्रीन रेवोल्यूशन आया, मतलब ये आपकी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी HYV सीड्स ये सब आपके इंट्रोड्यूस हुए, जिसकी वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया था फार्मिंग में। ठीक है, तो ट्रेडिशनल वे में मिड 1960 तक जो सीड्स थी ना वो ट्रेडिशनल सीड थी, जो नॉर्मल सीड्स होती है उसको वो ग्रो कर देते थे और बहुत टाइम लगता था और अच्छी क्वालिटी की भी नहीं होती थी। तो देखो ट्रेडिशनल सीड्स इनको कम इरिगेशन चाहिए होता था, फार्मर्स भी खुश होते भाई पानी कम चाहिए, क्रॉप्स भी अच्छी ग्रो रही है, तो ये था इनका मीन। अब फार्मर्स क्या करते थे, दे यूज्ड टू काउ डंग, हमको पता है ना, दे यूज मैन्योर, विलेज में प्रिपेयर सॉरी फील्ड में प्रिपेयर मैन्योर यूज करते थे। ऑल दीज were readily available with farmers who did not have to buy them. अब देखो मतलब ये सबसे आपके लिए चीप मेथड हो गया, चीप मेथड। बट इज दिस नाइस? मतलब बिल्कुल भी नहीं, इतना भी अच्छा नहीं था, तभी इसको हमने रिप्लेस करा ग्रीन रेवोल्यूशन से। द ग्रीन रेवोल्यूशन आई, it introduced the cultivation of wheat and rice. Wheat and rice को cultivate करा गया using the HYV seeds. HYV seeds क्या होता है? High yield variety seeds. देखो नीचे, high yield variety seeds produces much greater amounts of grains from a single plant. जहां एक प्लांट से आपको let's say 250 quantities समथिंग मिल रहा था, वही जब आप HYV सीड्स यूज करते हो, ये आप ये नॉर्मल सीड यूज करके, ये वाला प्लांट था, ये मेरा HYV सीड वाला प्लांट था, मैं इसको कर रही हूँ तो मेरा डबल ट्रिपल बन रहा है। से फॉर एग्जांपल मेरा 1000 हो गया। सो इजंट इट मच बेटर? जहां एक ही प्लांट से पहले 250 समथिंग मिल रहा था, वही एक ही प्लांट से मेरा 1000 मिल रहा है। Won't I use HYV seed? Yes, I will. I need more and more profit. Needs plenty of water. But इसमें क्या है भाई, आपको बहुत ज्यादा पानी चाहिए, बहुत ज्यादा आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, ताकि आप अच्छे रिजल्ट्स लाओ। ठीक है भाई, अच्छे रिजल्ट, अच्छा पेपर में अच्छा लाना, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ मेहनत, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, है ना? That's the thing. अब देखो अभी इनको सबसे पहले किसने ट्राई करा? फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। भाई ये तीन हम सबको पता है, ये सबसे अच्छी हमारी बेस्ट स्टेट्स है जो हमारी नॉर्थ इंडिया में फार्मिंग होती है। कौन सी? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, they were the first to try out the modern farming methods in India. तो
क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी थी भाई, टेल अस व्हिच स्टेट्स वर द फर्स्ट टू ट्राई द मॉडर्न फार्मिंग मेथड फर्स्ट. यू विल टेल मैम पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. ठीक है, उत्तर प्रदेश मतलब क्या है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. ठीक है. Farmers in these regions, they set up tube wells for irrigation and they used HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides. ठीक है. Some of them bought farm machineries भी आ गई, देखो पूरा मॉडर्न हो गया. Machineries like tractors, threshers, which made plowing and harvesting faster. देख रहे हो, ये नई नई मशीन्स लाए, अच्छी अच्छी सीड यूज करी, जिससे इनकी जो फार्मिंग है वो फास्टर हो गई. Right? They were rewarded with high yields of wheat. ठीक है. They were rewarded with high yields of wheat. Coming on to this point, in Palampur, yield of wheat grown from the traditional, देखो पहले जो ट्रेडिशनल था तो आपका 1300 kg आपका प्रोड्यूस हो रहा था पर हेक्टेयर. बट जब आप HYV सीड्स यूज करते हो, मतलब जब उन्होंने करा यूज, तो उनका जो सेम लैंड था 1 हेक्टेयर, उससे उन्होंने प्रोड्यूस करा 3200 kgs पर हेक्टेयर. डिफरेंस देख रहे हो कितना है. पहले इन्होंने सिर्फ इतना प्रोड्यूस करा था, कौन सी चीज से, ट्रेडिशनल वाली सीड्स इन्होंने प्रोड्यूस करा. ठीक है. जब उन्होंने फिर HYV सीड्स यानी कि उन्होंने जो मॉडर्न सीड्स यूज करी, तो उनका इतना बढ़ गया कि नहीं, सी द चेंज. That's why people were starting using the HYV seeds, the modern method of farming. There was a large increase in production, therefore farmers had a greater amount of surplus यानी कि extra production to sell in market now. जहां एक इंसान थोड़ा सा प्रोड्यूस कर रहा था, उसके पास बहुत ज्यादा हो गया था, डबल हो गया था. अब देखो, अब हम इतना फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, इतने पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, इतना इरिगेट कर रहे हैं, will the land sustain? Obviously not. What are the cons of the modern farming methods? What what defects, demerits? Okay, what are the disadvantages, demerit, defects of the modern farming methods? Scientific reports indicate that a modern farming overuse the natural resource. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased chemical fertilizer. इतने आपने chemical fertilizer use करे कि जो soil है उसकी ही fertility lose हो गई. Right? Continuous use of groundwater for tube well irrigation has reduced the water table. इतना आपने irrigate करा, आपने इतनी चीजें मतलब आपने इतना इरिगेट करा कि ट्यूब वेल से इरिगेट करा कि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी रिड्यूस हो गया. केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड minerals which dissolve in the water and are immediately available to the plants. केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो ऐसी चीजें यूज करते हैं, उनमें ऐसा मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि जो वाटर है उसमें डिसॉल्व हो जाता है और इमीडिएटली प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाता है. इसका बैड इंपैक्ट्स क्या है? मिनरल में नॉट बी रिटेन इन द सॉइल फॉर लॉन्ग, दिस मे एस्केप द सॉइल, पोल्यूट. देखो पोल्यूशन हो रहा है. कैन यू अंडरस्टैंड? इट आल्सो किल्स द बैक्टीरिया दैट आर गुड फॉर द सॉइल. आपको पता है ना, earthworms are the friends of the farmers. तो इतना फर्टिलाइजर, इतने केमिकल्स यूज करोगे कि जो भी आपके बैक्टीरिया है, जितने भी आपके माइक्रोब्स हैं, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? डेड, खत्म हो जाएंगे. आपकी सॉइल फर्टाइल बचेगी बिल्कुल नहीं, जीरो फर्टिलिटी हो जाएगी आपकी सॉइल की. अब क्या करोगे? सी, कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब has led to the degradation of soil. इतना पंजाब ने फर्टिलाइजर, इतना केमिकल यूज करा, उनकी सॉइल ही डिग्रेड हुई. Environmental resources such as soil fertility, groundwater has built up over many years. एक बार destroy हो गए तो we cannot restore them. You know that the non-renewable resources, they cannot be renewed once lost.
ग्राउंड वाटर टेबल उसको बहुत टाइम लगता है, ओवर मेनी इयर्स जो ग्राउंड वाटर है वो बिल्डअप होता है, रेन वाटर की ड्रॉप्स आती है एंड सो ऑन। एक बार ही उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे उसको बहुत इयर्स लगेंगे फिर से रिस्टोर होने में। We must take care of the environment to ensure future development and agriculture. How is the land distributed between the farmers and Palampur? अब land distribution कैसे है? देखो land distribution ऐसा है, ये this is a very important question, 5 मार्क का क्वेश्चन या 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। जितना भी लैंड पालमपुर में है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लैंड जो कि मोर देन 2 हेक्टेयर्स है, लैंड जो कि लेस देन 2 हेक्टेयर है, और तीसरा लैंडलेस जिसके पास लैंड ही नहीं है। ठीक है, वो लोग जिनके पास लैंड 2 हेक्टेयर से ज्यादा है वो कितनी है हमारी, वो 60 फैमिलीज है। 60 फैमिलीज है टोटल में जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है। जो लैंडलेस है मतलब जिनका लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स है, 2 हेक्टेयर से कम है, वो हमारे पास 240 फैमिलीज है। और जो लैंडलेस हम सबको पता है वो तो दलित शेड्यूल कास्ट है, वो तो 150 कंप्राइज करते हैं। तो देखो, cultivation of such plot does not bring adequate income, they need to look for additional occupation। अब ये वाले जो हैं, ये जिनके पास थोड़ा लैंड है, 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, वो कम प्रोड्यूस करेंगे, लेस प्रोडक्शन होगी उनके लैंड पे। लेस प्रोडक्शन मींस सेल्फ कंजम्पशन के लिए रह जाएगा, जितना भी वो प्रोड्यूस करेंगे सेल्फ कंजम्पशन, जितना वो प्रोड्यूस करेंगे सारी उनकी फैमिली कंज्यूम कर लेगी, कंज्यूम कर लेगी। नाउ व्हाट टू डू, अर्न कहां से करेंगे, अर्न कहां से करेंगे? फॉर दैट दे हैव 2 ऑप्शंस, या तो दे विल हैव टू वर्क इन देयर फील्ड्स, या तो दे विल हैव टू डू सम नॉन फार्म एक्टिविटीज। नॉन फार्म एक्टिविटीज, ठीक है। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation। हम सबको पता है कि दलित्स भी होते हैं, है ना, पुअर आपके शेड्यूल कास्ट भी होते हैं, इनके पास तो होता ही नहीं है लैंड। What will they do? Who will provide the labor? देखो, after the land, labor is necessary। अभी हमने पढ़ा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या प्रीरिक्विजिट्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। लैंड हमने पूरा पढ़ लिया। लेबर, देखो लेबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब लेबर आएगी कहां से? अभी हमने पढ़ा फार्मिंग में बहुत काम है, उसके लिए लेबर भी चाहिए। We cannot do everything. If I have such a big land, if I have 10 hectares of land, I cannot work on my field on my own. Everything cannot be done on my own. Small farmers, their field with the families. ठीक है, तो farming requires a great deal of hard work. बहुत हार्ड वर्क चाहिए फार्मिंग में, ठीक है। इसके लिए जो स्मॉल फार्मर्स है वो अपनी खुद की फील्ड कल्टीवेट करते हैं, अपनी फैमिली को सेल्फ कंज्यूम करते हैं, अपनी फैमिली को जो भी प्रोड्यूस करते हैं देते हैं। Thus they provide labor required for farming themselves। ठीक है, अब देखो इनका लैंड ही छोटा है तो अपने फार्म पे खुद ही काम करेंगे ना, इनको तो लेबर की जरूरत नहीं है। इफ आई हैव अ लिटिल लैंड, ठीक है, 1 हेक्टेयर लैंड है, इस पे तो मैं खुद काम कर सकती हूँ ना, मेरे को लेबर की तो जरूरत नहीं है। पर जो बड़े फार्मर्स है, जो लार्ज फार्मर्स हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है, उनको तो लेबर्स चाहिए, राइट। तो उनके फार्म पे कौन काम करता है? स्मॉल फार्मर्स काम करते हैं। यही स्मॉल फार्मर्स जिनके पास कम लैंड है वही काम करते हैं बड़े वाले फार्मर्स के लैंड पे एज अ फार्म लेबरर। Coming on to the farm laborers. Farm laborers come from either landless families cultivating small plots of land। ठीक है, farm laborers don't have right over the crops they have। ठीक है, फार्म लेबरर्स जो है ये दूसरों के लैंड पे काम करते हैं, बट इनकी कोई राइट नहीं उनकी क्रॉप से। मतलब भाई इतने बड़े क्रॉप पे, आई मीन इतने बड़े लैंड पे काम करते हैं, इनका कोई राइट भी नहीं है कि हम अपने जो ओनर है लैंड का उसकी क्रॉप्स में से थोड़ा सा प्रोपोर्शन ले ले। सो अनफेयर, राइट?
Farm laborers do not have the right over the crops that are grown on the land. Wages, देखो wages can either be cash, ना तो उनको कैश मिल जाती है, या तो कैश ना तो क्रॉप मिल जाती है कभी कभी, ठीक है, कभी उनको कैश मिल जाएगी, सॉरी, और जब कैश अवेलेबल नहीं है तो उनको क्रॉप मिल जाएगी, क्योंकि इनके पास भी तो खाने की कमी होती है ना, तो दे आल्सो नीड क्रॉप. Wages are vary widely from a region to region, crop to crop, one farm activity to another. या वेरी नहीं वेरी होना था, ओके, वेरी. द क्रॉप्स, जो वेजेस हैं, दे वेरी फ्रॉम एक रीजन से दूसरे रीजन में, वन क्रॉप टू अदर क्रॉप. कोई अगर ज्यादा मेहनत वाली क्रॉप कर रहा है उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो कम क्रॉप कर रहा है उसको कम मिलेंगे, एंड सो ऑन. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ओनर. अगर ओनर अच्छा है तो उसको मिल जाएंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे. Variation of duration of employment. Farm laborers might be employed on a daily basis or for one particular farm for harvesting or the whole year. देखो duration भी अलग अलग है. कुछ लोगों को farmers थोड़े time के लिए चाहिए होते हैं, कुछ को पूरे year के लिए चाहिए होते हैं, कुछ को सिर्फ harvesting के लिए चाहिए होते हैं. Right? Coming on to do you know the minimum wage for a farm laborer set by the government is 300 rupees March 2017 per day. ठीक है? What is the problem in this thing? There's a heavy competition for work among the laborers, so people agree to work on lower wages. मतलब क्या इसका? देखो, जो ये लेबरर्स हैं, अब आप कहोगे इनकी वेज है 300 रुपीज सेट बाय द गवर्नमेंट. ये काम कर लेते हैं, इवन आप इनको 20 रुपीज दोगे तब भी काम कर लेंगे. इतने कम प्राइस पे इतना काम कैसे कर लेते हैं ये? क्यों? बिकॉज देयर इज अ कंपटीशन. कैसा कंपटीशन? वी ऑल नो पालमपुर में लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है. अब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है तो यू कैन वर्क ऑन एनी वेज. भाई आप मेरे को कोई भी वेज दो, आई विल वर्क फॉर इट बिकॉज आई डू नॉट हैव जॉब. सो द फार्मर्स they are ready to work even on lower wages. Now what is capital needed in farming? जो भी capital चाहिए होता है कहाँ से आता है? Modern farming methods require a great deal of capital. That's why now the farmers need more money. बड़े फार्मर्स है, उनका बड़ा लैंड है, बड़ी उनको चीजें चाहिए, सो दे नीड मोर मनी. स्मॉल फार्मर्स को इतनी चाहिए नहीं होती है मनी. अब देखो स्मॉल फार्मर्स क्योंकि लेस प्रोड्यूस करते हैं, लेस उनके पास मनी होती है, तो इनको मनी बोरो करनी पड़ती है फ्रॉम द मनी लेंडर्स. मनी क्यों बोरो करनी पड़ती है? क्योंकि इनको भी तो अपने घर के अदर सामान लाना है. इफ अ फार्मर प्रोड्यूसेस व्हीट, ये थोड़ी ना पूरे जिंदगी व्हीट ही खाता रहेगा. वी आल्सो हैव टू ईट सम अदर वेजिटेबल, नो? सो it is so sad that they have to borrow money from money lenders. अभी money lenders क्या करते हैं? They put such a big rate of interest on them कि it is very इतना हाई लोन कर देते हैं that they are unable to pay it. they इतना हाई लोन कर देते हैं, उनकी अर्निंग से भी 10 गुना ज्यादा. अगर एक फार्मर 100 रुपी पर डे अर्न करता है तो जो ये है लेंडर्स, मनी लेंडर्स, ये उन पे लोन लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का. How can a farmer who is producing 100 rupee per day pay 1 lakh in 1 month? Obviously, there's a great stress of paying back the money that he got. And in such ways, the farmers, they either suicide or they take very they take very bad steps which are very sad. Okay, so see, they are in a great distress to repay the loan. The medium and so large farmers उनके तो अलग ही, they have a lot of money. तो ये क्या करते हैं? ये सेव कर लेते हैं मनी. देखो मैंने if I earned this much, I will save some amount, इसका some amount I will
spend for my children, my family. Some I will keep for my future savings, and some I will use currently to buy my tools. Can you see? They have their own savings from farming. ज्यादा land है, ज्यादा खेती करते हैं, ज्यादा money है इनके पास, thus they are able to arrange capital. इनके पास नहीं हो पाता. सेल ऑफ सरप्लस. अब इतना जो ये सरप्लस करते हैं उसको सेल कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे? Let's suppose that the farmers have produced wheat on their land. The wheat is harvested and produced completely. ठीक है. अब farmers क्या करेंगे wheat का? बहुत ज्यादा wheat प्रोड्यूस हो गया, ऑब्वियसली थोड़ा सा खुद के लिए रख के सेल कर देंगे मार्केट्स में, राइट? सो फार्मर्स दे रिटेन अ पार्ट ऑफ wheat फॉर द फैमिली, थोड़ा फैमिली के लिए रखते हैं, और जितना भी सरप्लस होता है बेच देते हैं मार्केट में. स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, इनके पास इनकी जो टोटल प्रोडक्शन होती है इतनी थोड़ी सी होती है कि एक सब्सटैंशियल शेयर होता है जो अपनी फैमिली के लिए रखते हैं, और जितना फैमिली के लिए रखते हैं वो खत्म ही हो जाता है, तो मार्केट्स में सेल करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है ना? तो दे हैव नो सरप्लस लेफ्ट. ओके. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो हैं, इट इज अ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स who supply wheat to the market. अब कौन सप्लाई करता होगा wheat? बड़े वाले फार्मर्स जिनके पास एक्स्ट्रा है वही तो सप्लाई कर सकते हैं, है ना? Traders at the markets buy wheat and they sell it further to the shopkeepers in the towns and cities. ठीक है, इतने इनके पास मनी है, तो जो ट्रेडर्स हैं ये क्या करते हैं, ये मार्केट पे वीट जो है ये बाय कर देते हैं और इसको सेल कर देते हैं किसको? शॉपकीपर को. अब देखो, अब सिस्टम देखना क्या है. I'll show you through a flow chart kind of thing. देखो, लैंड है, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग फार्मर्स. ठीक है, ये वाले फार्मर्स की बात कर रही हूँ. इनके पास लैंड है, बहुत बड़ा लैंड है, उससे इन्होंने सरप्लस प्रोड्यूस करा. वो इन्होंने कहाँ करा सर? मार्केट्स में. ठीक है, अब इन मार्केट से किसने उठाया? ट्रेडर्स ने उठाया. ठीक है, अभी ये ट्रेडर्स का क्या काम है? अभी ओके, एनीवेज, जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स ने आगे किसको दिया? शॉपकीपर्स को दे दिया आगे. ठीक है, तो अभी हमने देखा कि लैंड से फार्मर ने सरप्लस करा, सरप्लस को उसने मार्केट में सेल कर दिया. ठीक है, अब उस मार्केट से ट्रेडर जी ने उठाया. अब ट्रेडर ने आगे कहां सेल कर दिया? शॉपकीपर पे. ही सेल इट टू द शॉपकीपर, है ना? तो यही इनका सर्कल चलता रहता है. ठीक है, ट्रेडर्स का क्या काम है भाई? मार्केट से उठाओ और शॉपकीपर को ज्यादा एक्सपेंसिव में बेच दो. चीप उठाओ, एक्सपेंसिव में सेल कर दो. दिस इज व्हाट मार्केटिंग इज. ओके, कमिंग ऑन टू ट्रेडर्स. हमने ये दिस पॉइंट भी रेड है ना? ओके, कमिंग ऑन, या यू कैन सी दिस थिंग. ठीक है, ओके, कम हियर, बेनिफिट्स ऑफ फार्मिंग. अब देखो बेनिफिट्स क्या है, हम ये बात करें मीडियम और लार्ज फार्मर्स की. अब इनका मोस्टली मनी जो है इट इज सेव्ड इन द बैंक. मोस्टली जो इनकी मनी होती है हम बैंक को सेव कर लेते हैं, और इट इज या तो वो बैंक में सेव कर लेते हैं या तो वो एक एज अ क्रेडिट दे देते हैं स्मॉल फार्मर्स को कि भाई तुमने आज ज्यादा काम किया, लो थोड़े पैसे ले लो. They are able to arrange capital. Obviously, a part of earning is kept for buying capital for the next session. अब इनके पास इतना मनी है भाई, थोड़ा बैंक में डाल देंगे, थोड़ा फैमिली पे स्पेंड कर देंगे, थोड़ा नेक्स्ट सेशन के लिए स्टफ के लिए बाय करने के लिए उसको रख लेंगे कि भाई नेक्स्ट ईयर मैं ये वाले टूल्स दूंगा तो उसके लिए वाले में जाकर करेंगे. So this is what it goes. Some farmers might also use savings to buy cattle, trucks and shop. ठीक है. Last topic of chapter, non-farming activities in Palampur. Farming, अभी हमने पूरी farming पढ़ ली है. Now we're gonna talk about the non-farming activities in Palampur. Okay, so ये non-farming activities also, a very important topic
I mean, इसमें से you usually get a 3 marker और a 4 marker, 1 markers भी आते हैं, but mainly you get this thing only, बड़े बड़े 3 markers 4 markers, because इसमें है ही इतना कुछ. Okay. Now coming on to the non-farming activities में, the first is your dairies. ठीक है, तो dairies you all know ये सारे milk centers हो गए and all. ठीक है, तो dairies में you have milk से related चीजें, where the common, हाँ, so see, this is very important. Okay, let's read it. The common activity in many families of Palampur, from there it is further, sorry, wait. So see, yeah. First point is this, then second. Okay, actually I'm a bit confused now. So okay, so first here, देखो जो मिल्क है, मैंने भी अभी आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले रायगंज के बारे में, है ना, रायगंज के बारे में मैंने आपको बताया था ना. व्हाट इज रायगंज? इट इज अ बिग टाउन which is 3 kilometers away from पालमपुर. अब जो ये रायगंज है, यहाँ पे मिल्क हम सोल्ड करते हैं. ठीक है, जो भी आपका मिल्क प्रोड्यूस होता है हम इसको यहाँ पे सोल्ड करते हैं. फिर people they feed their buffaloes on various kinds of grasses and the jowar and bajra. अब जो भी ये लोग ज्वार एंड बाजरा प्रोड्यूस करते हैं, ये पीपल जो हैं ये अपनी बफेलोस को इसी पर फीड करते हैं. राइट, कमिंग ऑन टू कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. अब देखो मेनी जो भी है, अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों का जो मेन एक्टिविटी है कुछ कुछ फैमिलीज में वो डेयरी ही है. सॉरी, वो डेयरी ही है. मेनी फैमिलीज में डेयरी ही इनकी मेन एक्टिविटी है. देखो मैंने कहा थोड़ी, ठीक है, थोड़ी फैमिलीज, कुछ कॉमन, यूजुअली कॉमन, ठीक है, उन्होंने अपना डेयरी का ही करा हुआ है. कुछ शॉपकीपर्स हैं, कुछ ट्रेडिंग में है, कुछ मोस्टली फार्मिंग में है. ठीक है, मैं कह रही हूँ कुछ जो लोग हैं उनके डेयरिंग ही एज अ मेन एक्टिविटी है. फ्रॉम देयर इट इज फर्दर ट्रांसपोर्टेड टू अदर टाउन्स एंड सिटीज. ठीक है, जो आपका रायगंज पे बनता है, इसको आगे कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं? अदर सिटीज में. ठीक है, रायगंज में बनता है और आगे अदर जगहों पर सेल कर देते हैं. फिर आता है आपको स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. अगर आपको याद हो ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वाला आई डिस्कस ना कि हियर ये अपना ही एक पैच ऑफ लैंड लेते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपना ही काम करते हैं, ना ज्यादा इनकी अर्निंग ना कुछ. लेस देन 50%, देखो 50 से कम पीपल, 50 से कम पीपल, तो देख रहे कितनी लेस प्रैक्टिस एक्टिविटी है. 50 लोगों से कम they are engaged in the manufacturing industries in Palampur. Manufacturing in Palampur involves a very simple production method and are done on a small scale. स्मॉल स्केल वाली मैंने कहा था ना, एक स्मॉल सा एरिया होता है जहां पे लोग प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, देन most of the work is carried out at home with the help of family labor. कहा था ना, जितने भी घर में फैमिली में रहते हैं लोग, जितने भी हैं, उन सब को क्या करते हैं? engage कर लेते हैं इसमें. Right, most of the work is carried out at home with the help of family labor. Now labors are rarely hired. ठीक है, फिर आते हैं हम शॉपकीपर्स इन पालमपुर पे. शॉपकीपर्स, ठीक है, अभी मैंने बता था ना शॉप्स के बारे में, लोगों ने अपनी शॉप्स ओपन करके रखी हुई हैं, they open their shops and all. The people involved in the sorry here, there are small general stores in the Palampur. Small general stores जैसे हमारे यहाँ पे भी होते हैं in cities and towns, वैसे ही पालमपुर में भी कुछ जनरल स्टोर्स हैं.
a wide range of items such as rice, wheat, sugar, soap, toothpaste, जो भी general daily needs में चाहिए होते हैं, they are sold here. Then people involved in the trade are not many. People जो ट्रेड में है ये ज्यादा नहीं है, ठीक है, कम लोग हैं इन्वॉल्व. अब जो ट्रेडर्स इनका क्या काम है, ये होलसेल मार्केट, जब हम बात करें थे ना फार्मर्स होल्ड करते हैं, वहीं पे जो फार्मर्स हैं वो वहां से सेल करते हैं, अपनी मार्केट्स में करते हैं, मार्केट से होल प्राइस में ये लोग उठाते हैं और यहाँ आके सिटीज में ये सेल कर देते हैं. ट्रांसपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, ठीक है. वैरायटी ऑफ व्हीकल्स, रोड्स कनेक्ट्स पालमपुर टू रायगंज, जब हमने बात करी थी. रिक्शा वाला, ठोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. The ferry people and goods from one place to another and in return get paid for it. ठीक है, एक लोग एक इंसान को दूसरे जगह से ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, या चीजों का ट्रांसपोर्ट करते हैं, थिंग्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, मटेरियल का, गुड्स का, एवरीथिंग का ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड इनको इसके लिए मनी मिलती है. ऑलराइट, the number of people involved in the transport has grown over the last several years. increase होगी है ये लोगों का ट्रांसपोर्ट में आना. And here is where our chapter ends. So this was not a very big chapter, but it was a ठीक chapter, ठीक length का था. And I hope that you all understood this chapter well. And if you all have any doubt, please mention it in the comment section. I will surely try to give the answer of all your questions. And let's meet in our next video. Till then, thank you for watching and bye.